بعض اوقات بندے کو اپنے شوق اور دلچسپی کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آتی۔ مجھے بھی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ مجھے پرانے قلعوں سے کیا دلچسپی ہے۔ جہاں کہیں کوئی قلعہ دکھائی دیا اندر جانے کی پڑ گئی۔ ہمارے ہاں کے بعض قلعے بہت شاندار اور اچھی حالت میں ہیں، لیکن بیشتر قلعوں کا حال خراب ہے۔ خستگی اور عدم توجہی نے بہت سے قلعے برباد کر دیے ہیں، اور بقیہ جو بچے ہیں ان میں سے گنتی کے چند ایک کے علاوہ باقی اسی بربادی کی طرف گامزن ہیں جو پہلے قلعوں کا مقدر بن چکی ہے۔ صحرائے چولستان میں جابجا بنے ہوئے قلعوں میں سے صرف دراوڑ کا قلعہ اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے، وگرنہ دیگر قلعے جیسے موج گڑھ، اسلام گڑھ، امیر گڑھ، مروٹ، خیر گڑھ اور نواں کوٹ وغیرہ میں سے بعض کے صرف اثر باقی رہ گئے، اور چند قلعوں کی دیواروں اور مرکزی دروازوں کے علاوہ باقی کچھ نہیں بچا۔ دریائے نیلم کے کنارے مظفر آباد شہر کے ایک سرے پر بنا ہوا لال قلعہ اپنی ساری شان و شوکت کھو چکا ہے۔ اسی طرح جی ٹی روڈ کے ساتھ متصل روات قلعے کا صرف بیرونی کالے پتھروں والا دروازہ سلامت تھا، اور دیوار کا کچھ ٹوٹا ہوا حصہ، باقی قلعہ ختم ہو چکا تھا۔ عرصہ ہوا اس قلعے میں جانا نہیں ہوا۔ موٹر وے بننے سے قبل کبھی کبھار ادھر گاڑی روک لیتا تھا اور دکانوں کے بیچ میں سے گزر کر اس قلعے میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس کا سیاہ سنگی دروازہ اس قلعے کے ماضی کی کہانی سناتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک خستہ حال مسجد تھی اور سلطان سارنگ خان گکھڑ کا مقبرہ۔ میں جب بھی اس قلعے میں گیا سارنگ خان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ وفاداری میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز اس سردار کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے دل نے ہر بار تصور میں جھک کر اس کو سلام پیش کیا۔ کلر سیدہ کے نزدیک سنگنی فورٹ نسبتاً اچھی حالت میں ہے، تاہم منگلہ جھیل کے قریب دریائے جہلم کے کنارے گکھڑ سردار توغلو خان کا بنایا ہوا قلعہ رام کوٹ اجڑ چکا ہے، اور وہاں تک پہنچنا بھی ایک باقاعدہ مہم جوئی کے مترادف ہے۔ اسی طرح دینا سے چند میل کے فاصلے پر روہتاس قلعہ تمام تر لاپرواہی، چشم پوشی اور حتی الامکان حد تک بربادی کی کوششوں کے باوجود اگر ابھی تک موجود ہے تو اس کی واحد وجہ اس کی مضبوطی، وسعت اور پتھروں کا کمال ہے۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ یہ قلعہ اس خطے کا سب سے نمایاں، شاندار اور ہیبت ناک قلعہ ہے۔ یہ واحد قلعہ ہے جو اپنی سنگی تعمیر کے تناظر میں یورپی قلعوں کی کسی حد تک ہمسری کر سکتا ہے، وگرنہ ہمارے ہاں تو اینٹوں کے کچھ مٹی سے تعمیر کردہ قلعوں کا رواج تھا، اور اپنی اسی تعمیری خرابی کے باعث بہت سے قلعے سواد فہ ہستی سے ہی مٹ گئے، اب محض ان کی جگہ مٹی کے ٹیلے رہ گئے۔ قصبہ گجرات مظفر گڑھ کے پاس محمود خان کا کچا قلعہ، شاہ جمال مظفر گڑھ کے پاس موجود کچا قلعہ اور اسی قسم کے دیگر قلعے مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ تلمبا کے قلعے کی دیواریں باقی رہ گئی ہیں۔ ملتان کا قدیمی قلعہ اب صرف بزرگان دین کے مزارات کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ فصیل بچی اور نہ ہی اس کا دمدمہ باقی بچا۔ اب دمدمے کے نام پر جو ایک چوکور سی عمارت کھڑی ہے وہ دمدمے کے نام پر تہمت ہے، جسے بنانے والے کو نہ ہی تاریخی عمارات کے طرز تعمیر کا شعور تھا اور نہ ہی کوئی جمالیاتی ذوق تھا کہ پہلے سے موجود قدیمی دمدمے کو اس کی اصل حالت میں تعمیر نو کر دیتا۔ سندھ میں کوٹ ڈیجی اور رانی کوٹ کا قلعہ، جس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کی دیوار کو چھوٹی دوان چین سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں کی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ ایک لے دے کر لاہور کا قلعہ ہے جو شاندار حالت میں ہے، تاہم اس قلعے کو اندر سے دیکھتے ہوئے ایک احساس ضرور ہوتا کہ مغلوں کی رہائش کی صورت حال کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ کمروں کا سائز اتنا چھوٹا اور دروازوں کی عدم موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی رہائش گاہ خاصی بے پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر محفوظ بھی تھی کہ حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑے ہوئے دربان کے علاوہ بادشاہ سلامت اور کسی حملہ آور کے درمیان کوئی حفاظتی حصار نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کے قلعوں کے برعکس یورپ کے قلعے زیادہ مضبوط، پرشکو، دبدبے والے اور شاندار ہیں۔ قلعے کے عام تصور کی مانند یورپ اور برطانیہ میں بھی قلعے اونچی جگہ پر کسی پہاڑی پر چٹان پر بنے ہوئے ہیں، تاہم پتھروں کی باالفسانی دستیابی کے باعث بیشتر قلعے پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے موسم کی تمام تر سختیوں کو باالفسانی جھیلتے ہوئے یہ قلعے صدیوں سے اسی مضبوطی اور خوبصورتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 400-500 سال پرانے قلعے بھی ایسے لگتے ہیں کہ گویا چند سال قبل ہی تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ قلعوں کے اندر شاہی رہائش گاہیں ایسی شاندار اور پرآسائش کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حکمران ادھر رہائش پذیر تھا، مضبوط ایسے کہ دیکھ کر دل دھل جائے، اور دیواریں ایسی بلند کے محاورے مطابق اوپر دیکھیں تو ٹوپی گر جائے۔ اکثر قلعوں کے اندر چھوٹے چھوٹے عجائب گھر جن میں بے شمار تاریخی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ سینکڑوں قلعے ایسے ہیں کہ جو خاندانی طور پر وراثتی جائیداد کے طور پر اگلی نسل کو ملتے آئے ہیں، اور آج بھی اسی خاندان کی وراثتی جائیداد کی حیثیت سے ان کی ذاتی ملکیت ہے۔
चंद बरस पेशतर में स्पेन के साहिली शहर मालिका से सोली इशबिलिया के रास्ते करतबा जा रहा था तो रास्ते में करमोना रुकने का कस्द किया, मगर सोली में ही इतनी देर लग गई कि करमोना में रुकने के लिए वक्त ही ना बचा। करमोना का कला वो जगह थी जहां नो उमर अब्दुर्रहमान अव्वल को घेरने और मारने के लिए बगदाद के अब्बासी खलीफा ने फौज भेजी थी। अब्बासी फौज की शिकस्त ने अब्दुर्रहमान के लिए स्पेन में फतह के दरवाजे खोल दिए। दरअसल सोली इशबिलिया में देखने के लिए इतना कुछ था कि वक्त तंग पड़ गया। रात जब हम करतबा से कुछ दूर थे, सड़क की एक तरफ ऊपर पहाड़ छोटिए की चोटी पर एक छोटा सा कला दिखाई दिया। दिल किया कि इस कले को देखूं, मगर इस वक्त कला बंद हो चुका था। अगर इस वक्त चांद ना निकला होता तो शायद हमें यह कला दिखाई भी ना देता। दिन सारा तो मस्जिद करतबा की सैर करते और करतबा की गलियों में घूमते गुजर गया। इससे पहले भी 2 बार करतबा आया, मगर इतनी भाग दौड़ में के सिवाय मस्जिद देखने और शहर की पुरानी गलियों में घूमने के अलावा और कुछ ना कर सका। इस बार करतबा से बाहर कई मील की दूरी पर वाक़े मदीन अल ज़ोहरा के बदकिस्मत शहर के खंडर देखने चला गया। ये ऐसा बदकिस्मत शहर था, पूरी तरह आबाद होने से पहले ही बर्बाद कर दिया गया। से पहर को मदीन अल ज़ोहरा से फारिग होकर शहर वापस आए और फिर इसी छोटे से किले की तरफ चल निकले। मालूम हुआ कि ये मुसलमानों के दौर का बना हुआ कदीम किला है। पहाड़ी की चोटी पर पत्थरों से बना हुआ ये किला बहुत ही अच्छी हालत में था और अब किसी की जाती मलकियत था। जब वहां पहुंचे तो 2 ख्वातीन किले का दरवाजा बंद करके ताला लगा रही थीं। कहने लगे, काफी देर से कोई सैया नहीं आ रहा था, लिहाजा हमने आज किला घंटा पहले बंद कर दिया है। इस किले को अंदर से देखने की हसरत अभी दिल में मौजूद है। मुसाफिर के दिल में लगन और पांव में चलने की हिम्मत हो तो दिल की हसरतें मिटाई जा सकती हैं। यूरोप भर में किले इस तरह बिखरे पड़े हैं कि हैरानी होती है। इन किलों में अमूमन 2 बातें बहुत मुश्तरक हैं। एक ये कि ये किले बुलंद व बाला पत्थर की दीवारों पर मुश्तमिल हैं, और दूसरी ये कि ये किले अमूमन किसी पहाड़ी की चोटी पर या किसी पत्थर की बड़ी चट्टान के आखिरी सिरे पर होते हैं। बाज़ किले तो ऐसी दुश्वार गुजार चढ़ाई के इख्तिताम पर हैं कि बनाने वाले पर हैरत भी होती है और दाद भी देने को दिल करता है। यकीन करें कि उन किलों को देखकर लगता है कि ऐसे किले सिर्फ देमालाई कहानियों में ही होते हैं। किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर की मानिंद के देखकर यकीन न आए कि ये किले हकीकत में भी मौजूद हैं। यही हाल बरतानिया का है, जहाँ जगह जगह पर किले मौजूद हैं। ताहम स्कॉटलैंड में तो खास तौर पर इतने किले हैं कि हर शहर के इर्द गिर्द 2-4 किले तो मिल ही जाते हैं। ग्लासगो से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत के अंदर अंदर तकरीबन 10 अदद किले मौजूद हैं और उनमें सबसे शानदार किला स्टर्लिंग का किला है। ग्लासगो से 20 मील के फासले पर स्टर्लिंग कस्बे के आखिरी सिरे पर पहाड़ी की चोटी पर स्कॉटलैंड की जिंग आज़ादी के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल ये किला सिर्फ एक तरफ से काबिल रसाई है और उसकी 3 अतराफ इतनी ज्यादा ढलवानदार हैं कि उधर से किले में दाखिले का इम्कान न होने के बराबर है। पहाड़ी अपने आखिरी सिरे पर इस तरह सीधी है कि लगता है कि ये पहाड़ी नहीं बल्कि पत्थर की दीवार है जो बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है। 1000 साल से जायद पुराना यह किला कई बार फतह हुआ और कई बार बर्बाद हुआ, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत और शानदार तर्ज पर तामीर हुआ। तारीखी तौर पर इस किले का पहला हवाला 1110 में मिलता है, जब इस चट्टान के ऊपर अलेक्जेंडर ओल्ड ने चैपल तामीर करवाया। ताहम स्कॉटलैंड को शुमाल की जानिब से नॉर्वे और जनूब की जानिब से इंग्लैंड के मोहल्लों से महफूज रखने की खातिर अलेक्जेंडर सिवम ने 1280 में इस किले की फसील बनवाई और इसमें बहुत सी इमारतें तामीर की। इस किले की तस्खीर और उस पर कब्जे और उसे छुड़वाने की तारीख बड़ी अजीब है। 1110 में तामीर होने वाला यह किला पहली बार अपनी तामीर के 186 साल बाद फतह हुआ। इसे इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ओल्ड ने फतह किया। ताहम सिर्फ 1 साल बाद 1297 में होने वाले स्टर्लिंग बुर्ज के मरके में फतह हासिल करने के बाद रॉबर्ट दी बरूस ने किले को दोबारा आजाद करवा लिया। अगले ही साल इंग्लैंड की फौज ने मरका फॉलकिर्क में स्कॉटलैंड की फौज को शिकस्त देने के बाद किले का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। सिर्फ 1 साल बाद 1299 में स्कॉटलैंड वालों ने यह किला दोबारा फतह कर लिया, मगर 5 साल बाद एडवर्ड ओल्ड ने इस पर तीसरी बार कब्जा कर लिया, जो 10 साल तक कायम रहा। 1314 में बेनाकबन की जंग में फकीदुल मिसाल कामयाबी हासिल करने के बाद इस किले पर एक बार फिर कब्जा कर लिया। 1336 में अंग्रेजों ने इस किले पर चौथी बार कब्जा कर लिया। ताहम यह किला उसके बाद बालाखर 1342 में स्कॉटलैंड वालों के मुकम्मल कब्जे में आ गया। इस किले की तारीख इतनी दिलचस्प है कि इस पर एक पूरी किताब भी लिखी जाए तो कम है,
लेकिन स्कॉटलैंड वालों की मुसलसल जिदोजहद एक ऐसी इंस्पिरेशन तख्लीक देती है कि जहन मुसलसल का मुकम्मल मफहूम समझ में आ जाता है। मुहासरों और हमलों में बार बार की नाकामी के बावजूद उसी जज्बे से दोबारा से 12 हमलों और मुहासरों के अपने तसलसल के बारे में खुद रॉबर्ट दी बरूस ने ट्राई अगेन का मशहूर जुमला बोला, जो बाद अज़ां एक मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया। 2015 में मैं अनवर मसूद साहिब के हमरा इस कले को देखने के लिए गया, लेकिन बदकिस्मती से इस रोज उसके सारे टिकट फरोख्त हो चुके थे और हम इस कले के दरवाजे को देखकर पलट आए। इस बार ग्लासगो गया तो पुख्ता इरादा था कि इस कले को हर हाल में देखना है। ग्लासगो में अमूमन मेरा क़याम हमदम देरीना और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मोहम्मद अशरफ के यहाँ ही होता है। इस बार असद और छोटी बेटी भी हमरा थी। अशरफ ग्लासगो और स्टर्लिंग के दरमियान में वाक़े कम्बरनालिड नामी शहर में रहता है। सुबह सवेरे हम लोग स्टर्लिंग की तरफ रवाना हो गए और आधे घंटे के बाद हम स्टर्लिंग के किले के दरवाजे के बाहर रॉबर्ट दी बरूस के मुजस्समे के पास खड़े थे। सामने दरियाए फोर्थ बह रहा था, जिसके पुल पर 1297 अशारिया में विलियम वेलिस ने मरका स्टर्लिंग बुर्ज में फतह हासिल की थी। कलों को संभालना और उन्हें सयाहों के लिए दिलचस्पी का मकाम बनाना यूरोप पर खत्म है, ताहम स्टर्लिंग का कला वाक़ता ऐसा है कि इसे देखना मानी रखता है। वही पुराने पत्थरों से बना हुआ फर्श और वही कदीम तोपें एक कमरे में गुज़िश्ता 1000 साल के दौरान किले के हुक्मरान बादशाहों के लकड़ी की गोल प्लेट को खोद कर बनाए गए चेहरे और पुराने हथियार। गरज हर चीज निहायत नफासत से संभाल कर रखी गई है और एक खास हसन तरतीब से इनको सजाया है। आधा दिन इस किले में ऐसा गुजरा कि वक्त गुजरने का पत्ता ही न चला और दिन ढलने के करीब आ गया। मैं अशरफ के हमरा किले से निकल रहा था कि डॉक्टर राशिद मसूद का फोन आ गया। पूछने लगा कि आप कहाँ हैं। से बताया कि हम स्टर्लिंग के किले से निकल रहे हैं। कहने लगा कि अब मेरा स्टर्लिंग में इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। आते ही पूछने लगा कि क्या आपने विलियम वेलिस वाले मशहूर मरका स्टर्लिंग बुर्ज वाला पुल देखा है। फिर जवाब सुने बगैर कहने लगे, मेरे पीछे आए, हम वहीं चलते हैं। 5 मिनट बाद हम दरियाए फोर्थ के किनारे इस पुल के पास थे। 1297 अशारिया में होने वाले मरके के वक्त ये तंग सा पुल लकड़ी का था, ताहम अब ये पुल पत्थर का है, लेकिन इस पुल की याद में उसकी चौड़ाई अब भी इतनी ही रखी गई है जितनी के असल पुल की थी। 2018 में अपने मुल्तान के दोस्त हाजी फजल के बेटे गुलाब खान के साथ बर्मिंघम से थोड़े फासले पर वारोक कासल गया तो हैरान रह गया कि किस तरह अपने तारीखी वर्से को संभाला गया है और इसे किस खूबसूरती से कमर्शल इज़म में ढालकर सयाहों को बेचा जा रहा है। उधर हमारे यहाँ ये आलम है कि रोहतास के किले के अंदर सैकड़ों घर तामीर हो चुके हैं। लोगों ने किले के पत्थर और ईंटें अपने घरों की तामीर में इस्तेमाल कर ली हैं। सिर्फ एक सोहेल गेट है जो आज भी अपनी आबोताब और शान व शौकत के साथ मौजूद है। अशरों पहले जब मैं वहां गया तो तब लंगर खानी गेट भी बुरी भली हालत में मौजूद था। 30 से 50 फुट तक बुलंद दीवार ऐसी मोटी के ऊपर से निस्बतन तंग हो जाने के बावजूद इतनी चौड़ी के इसके ऊपर बर्जियों के साथ वाले रास्ते पर घोड़ा चल सके। 60 से जायद हिफाजती बुर्जियां और 12 अंदरूनी दरवाजे। कई दरवाजे दोहरी तामीर वाले के एक दरवाजा टूट जाए तो आगे दूसरा हिफाजती दरवाजा आन मौजूद हो। शाह चांद वली दरवाजा, काबली दरवाजा, शीशी दरवाजा, तिलाकी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, गटिली दरवाजा, पिपली दरवाजा, खवास खानी दरवाजा और लंगर खानी दरवाजा। तबाशदा हवेली मान सिंह रानी महल और 3 बावलियां। तकरीबन 175 एकड़ पर मुश्तमिल ये नाकाबिले तस्खीर कला बाइसगीर पाक व हिंद के चंद वसी तरीन कलों में से एक था, लेकिन अदम तवज्जोही और लापरवाही के तोफैल आसित्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा है। वक्त गुजरने का तो पत्ता ही नहीं चलता। अभी कल की बात लगती है कि मैं अपनी बेटी और गुलाब खान के साथ 5 साल पहले वॉरविक कासल देख रहा था और आज 5 साल बाद फिर गुलाब खान के पास हूँ। गुलाब खान हमारे देरीना दोस्त और मुल्तान के हर दिल अजीज हाजी फजल खान चांडिये का बेटा है। वो इस मुसाफिर का दोस्त भी है और भतीजा भी। लगभग 1000 साल पुराना ये किला अपनी उम्र में तरह तरह के मालिक देख चुका है और इस अरसे के दौरान जहाँ वो बादशाह की जानिब से 3 खानदानों को अता किया गया और उनकी रहाइशगाह भी रहा, अब तक कल 36 मुख्तलिफ मालिकान के हाथों में जा चुका है।
लेकिन एक बात तय है कि उनमें से अक्सरियत ने इस किले की मुरम्मत, देखभाल, तज़यीन नौ और मुख्तलिफ तारीखी अशिया का ऐसा शानदार मजमुआ यहाँ इकट्ठा किया है कि हैरत होती है। 2005 में किले के मालिक एक ग्रुप ने यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी चालू हालत में मौजूद मंजनीक लाकर खड़ी कर दी। मरकजी हाल में पुराना असलहा, इजरा बख्तर, मुजस्समे और बेशुमार चीजें। 11वीं सदी में विलियम फातेह का लकड़ी से बना हुआ किला आज पत्थर से बने हुए एक शानदार और मजबूत किले की शक्ल में मौजूद है। अपने यहाँ 200-400 साल पुरानी इमारत भी इस तरह सलामत नहीं मिलती जिस तरह यूरोप में 1000-1200 साल पुरानी इमारत मिल जाती है। 400-500 साल की कदामत को वहाँ शायद कदामत का दर्जा भी हासिल नहीं है। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में मौजूद ब्रोटी के कासल दरियाए टी के किनारे पर है। इस किले की फसील चंद इमारतें और एक बुलंदो बाला बुर्ज शानदार हालत में है। इस बुर्ज की दरमियानी 2-3 मंजिलों को अब अजायब घर में बदल दिया गया है। 700 साल पुराने किले का ये बुर्ज खासा बुलंद है और उस पर सीढ़ियां चढ़ते हुए तबीयत खासी साफ हुई, मगर ऊपर चढ़कर दरिया और उसके पार शहर का नजारा किया तो सारी थकावट दूर हो गई। एक बुर्ज की दरमियानी 2-3 मंजिलों में छोटे से अजायब घर का एहतमाम करने के लिए किसी लंबे चौड़े खड़ाक की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी हिस्न जमालियात और अजायब घर बनाने के फिन से आगाही जरूरी है, जो हमारे यहाँ मफकूद है। हम अहले मुल्तान एक अरसे से मुल्तान में अजायब घर की खुशखबरी सुन रहे हैं, मगर अमली तौर पर इस मामले में कारकर्दगी 0/0 है। इस सिलसिले में मुल्तान के कदीमी घंटा घर को, जो पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था, खाली करवाया गया। ये 138 साला कदीम इमारत है जो एक इमारत और क्लॉक टावर पर मुश्तमिल है। 1884 में बनने वाली इस इमारत के हाल को इंडिया के वाइसराय के नाम पर रेन हाल का नाम दिया गया और घड़ियाल लगाने के लिए बनाए गए बुलंदोबाला टावर को साबिक वाइसराय के नाम पर और नॉर्थ ब्रूक टावर का नाम दिया गया। इस इमारत की 2 बार तज़ीन व मरम्मत भी की गई, मगर बाद अज़ां इस इमारत को अजायब घर के लिए नामौज़ू करार दे दिया गया। इस इमारत के इर्द गिर्द तमाम इमारतें गैर कानूनी तामीर का शाहकार हैं। इन तजावुज़ात को गुज़िश्ता 1.5 अशरे से ख़त्म करवाने की कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। बरसों से खाली इमारत खड़े खड़े फिर खस्तगी और बर्बादी की तरफ गामजन है। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर मुल्तान में वाकई कभी कोई अजायब घर बन गया तो हम इसमें आखिर क्या रखेंगे। ऊंट की खाल के चंद टेबल लैंप, ब्लू पॉटरी की दर्जन भर चीजें और ऊंट की हड्डी से बने हुए आजार बंद के अलावा भला हमारे पास बचा ही किया है जिसे इस अजायब घर में रखेंगे। हमारा सारा तारीखी वर्सा और कदीमी नवादिरात आसित्ता अलिफान छू होकर बरतानवी अजायब घरों और हमारे हुक्मरानों के अंदरून व बरून मुल्क मोहल्लों की जीनत बन गए। इधर बरतानिया के जिस किले अजायब घर में चले जाएं, हजारों साल पुराने उनके अपने नवादिरात और निशानियों के साथ साथ दुनिया भर से लूट कर लाए जाने वाले अजायबात और नवादिरात भरे पड़े हैं। एडिनबरा का किला मैंने करीब 2 अशरे कबल भी देखा था। तब इसमें टीपू सुल्तान की 5 तलवारें मौजूद थीं। फिर मालूम हुआ कि ये तलवारें किसी ने नीलामी में खरीद ली हैं या फिर ये किसी और किले में चली गई हैं, ताहम वो एडिनबरा में नहीं थी। इस दौरान 4-5 बार एडिनबरा जाना हुआ, मगर किले में जाने को दिल ही ना किया। इस बार एडिनबरा गया तो बरादरम ताहिर बशीर ने बताया कि खुदा जाने ये पहले वाली तलवारों में से हैं या ये कोई और वाली हैं, लेकिन अब किले में टीपू सुल्तान की 2 अदद तलवारें दोबारा सजा दी गई। मैं दोनों बच्चों के हमरा दोबारा किला देखने चल पड़ा। 1000 साला कदीम किला अपनी पूरी शान व शौकत के साथ मौजूद था। इसे अंदर से खराब तब्दील किए बगैर ऐसे आला तरीके से सजावटी कमरों और गैलरियों में तब्दील किया गया है कि डिजाइन करने वाले पर हैरत होती है। आमतौर पर तामीर करदा स्कॉटिश किलों की मानिंद ये किला भी एक बुलंद चट्टान के ऊपर बना हुआ है और मीलों दूर से दिखाई देता है। इसमें 1000 साल पुरानी सारी तारीखी अशिया और दीगर चीजें बशमूल तस्वीर, मुजस्समे, हथियार, स्कॉटिश बैंड, फौजी साजो सामान और रॉयल स्कॉट यूनिट के बहादुरों के तमगे, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस लेने वालों के नाम, तारुफ और उनके असल मेडल, गरज वो सब कुछ है जो पूरी स्कॉटिश तारीख और तहजीब की नुमाइंदगी करता है। सदियों से इस किले से दोपहर 1 बजे तोप चलाई जाती है। किसी जमाने में तोप का दागा जाने वाला ये गोला बंदरगाह पर मौजूद जहाजियों के लिए वक्त का ऐलान होता था। वक्त के साथ साथ तोपें बदलती गईं। अब यहाँ जदीद तोप इस काम को सरंजाम दे रही है जो अब भी वनो क्लाक गिन कहलाती है। एक चाक व चौबंद बावर्दी सिपाही मार्च करता हुआ आया, फिर इसने तोप में गोला लोड किया और वापस अपनी जगह पर चला गया। 1 आध मिनट के बाद वो दोबारा तोप के पास आया
اور قلعے کی نکر میں لگی ہوئی گھڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کبھی اس توپ کو توپچی چلاتے ہوں گے، لیکن اب یہ 1 بجے خودکار نظام کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ 1 بجے سے کافی پہلے لوگ اس توپ کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جن کو وہاں مناسب جگہ نہ ملی وہ سامنے والی طرف قلعے کی دوسری منزل پر چڑھ گئے۔ قلعے کا ٹکٹ پاکستانی کرنسی میں 4000 روپے سے زیادہ کا تھا، مگر کاروباری ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ گوروں نے اس توپ کو چلانے اور جاری رکھنے کے لیے قلعے میں ایک جگہ ایک ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے۔ برسوں پہلے میں کارڈف گیا تو اس کے قلعے میں پہنچ گیا۔ یہ قلعہ بھی پرائیویٹ ملکیت ہے اور اس کی ٹکٹ بھی خاصی مہنگی ہے۔ قلعے سے باہر نکل کر ایسے ہی عادتنا بے سمت آوارہ گردی میں مصروف تھا کہ ایک قدیم قبرستان پر نظر پڑی۔ پرانا قبرستان دیکھ کر مسافر اندر چلا گیا۔ پرانی پتھروں کی قبریں، ان پر لگے ہوئے سنگ لو مزار اور کتبے ماں و سال کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ایک قبر پر لگے پتھر پر نظر پڑی، یہ 550 سال پرانی قبر تھی۔ کوئی قبر بھی 200 سال سے کم پرانی نہیں تھی، یعنی یہاں آخری مردہ 2 صدیاں قبل دفن ہوا تھا، مگر 200 سال سے عملی طور پر غیر استعمال شدہ قبرستان میں نہ تجاوزات تھیں اور نہ تعمیرات، نہ کوئی چرسی سگریٹ میں چرس بھر رہا تھا اور نہ کسی ملنگ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ادھر ملتان کے قدیمی پاک مائی قبرستان میں میری آنکھوں کے سامنے لوگوں نے قبرستان کے سڑک والے حصے پر دکانیں بنا لیں اور گھر تعمیر کر لیے۔ یہی حال جلال باقری اور ملتان کے دیگر قبرستانوں کا ہے۔ بندہ کس کس بات کا رونا روئے۔